All right, everyone, welcome to the class. We are done with our very first unit wherein we discussed about various philosophers, history of psychology, various systems of psychology which are there. We also read in detail about certain schools, structuralism, functionalism, psychoanalysis, right? And we also elaborated upon the research paradigms which are there, right? And we also elaborated upon some other philosophers like Thomas Kuhn and Karl Popper, who have contributed a lot to development of what today's science is, right? So we yesterday we discussed about various paradigms, right? So first of all, I would be asking few questions in regard to that. So anybody, all of you can type in what are the four components of a paradigm. You can type in or unmute yourself. Anyone? What are the four major components of paradigm? Ontology, yes. Then epistemology, axiology, methodology. Very good, everyone. ठीक है, very good. Epistemology, axiology, and methodology. On the basis of that, we read about various paradigms which are there. So quickly, one by one, we will move alphabetically. ठीक है. So first of all, Anushka, did you attend yesterday's class? I think Anushka was there. Yes, ma'am. Yes. So Anushka, can you please tell us what is ontology quickly? बस एक वर्ड में जल्दी से. कि क्या होता है ontology? I guess it's uh, like the study of existence, Study of. Can you please repeat, Anushka? study of existence or Study of. realism. Okay. Yes. So ontology is basically what related or concerned with what is reality, what is actually true. ठीक है. So okay, well tried. Then next person, what is epistemology? चारवी. चल से एवरीवन प्लीज बी रेडी, है ना, कि अपनी चांस के टाइम पे. चारवी, एम आई ऑडिबल? ओके. डिम्पल? हाँ जी निदा, बताओ. Ma'am, is it is basically how we are studying the reality, whether it is objective or subjective. Very good. How we gain knowledge about reality. Very good. Axiology deals with what? You can raise your hand. Whosoever knows, you can raise your hand and you can then unmute yourself. Yes, Manvi. Ethics. Ethics. It deals with ethics, values that we take into consideration while conducting any form of scientific evaluation. Then, at last, what is methodology? Anyone?
हाँ जी, मानवी बताओ. ओके. Basically, whether we are using qualitative methods or quantitative methods to gather the data. Like, Right. So, what is the research design? What are the tools that we are undertaking, techniques, etc. ठीक है? And we read about various paradigms which are there. We read about positivism. Who coined the term positivism? Quickly. Yes, Nida. Auguste Comte. Auguste Comte. Very good, right? Now, everyone, please tell us what is the ontology which is concerned with positivism? Kritika, it is realism. What kind of realism? Naive realism. Very good, Gaurangi. Very good, Manvi. ठीक है, naive realism, wherein we believe that everything that we know is everything that we are discovering, it is 100% true. Nothing else can be the reality, single reality, single truth. Then what is the how do we gain the knowledge? What is the methodology? How do we gain it? Objectively. Very good, Kritika. ठीक है, objective. What is the axiology? बेनिफिसेंस. राइट, बेनिफिसेंस इज वन ऑफ द एथिक. हम जब एपी के एथिक्स पढ़ते हैं तभी भी पढ़ते हैं बेनिफिसेंस. इट इज giving any kind of benefit possible to all the participants. And at last the methodology will be quantitative or experimental. ठीक है, then we moved ahead and post positivism came into play. What is the difference between positivism and post positivism? Anybody? हाँ जी, मान. ma'am, in positivism, we consider the chances of error that we say there is a one truth, but there are chances of error in finding the truth. Very good, Manvi. Very good, Garangi and Kritika. All of you are correct. There is only one difference, which is critical realism. We believe that there is still a chance of error. Apart from that, the epistemology, axiology, and methodology remain same. ठीक है, then we studied about interpretive. What is the ontology in interpretive? Relativism. ठीक है. Who will tell that what do we do in interpretivism? What is the key proponent or key idea of interpretive paradigm? Anyone? कोई ट्राई तो करो. मे बी यू वुड बी करेक्ट. Very good, Manvi Singh. Experience vary from individual to individual, and we are more or less interpreting, giving meaning to the subjective experience of the individual. Hence, the epistemology would always be subjective, axiology would be balanced, ठीक है, and at last the methodology would be qualitative in nature. ठीक है, then constructivism. ठीक है. Now anybody who would tell क्या होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में, जल्दी से. वेरी गुड. ठीक है, all the ontology, epistemology, axiology and methodology will be same in constructivism as similar to interpretive.
But there is one key difference, that in constructivism we believe that people are creating their reality on the basis of their experiences, learning, right? We also talked about two kind of constructivism. What are those? Ma'am, cognitive and social. Very good everyone. Cognitive constructivism and social constructivism. Cognitive constructivism का एग्जाम्पल कौन है? जीन पियाजे. एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का वाइगॉट्स्की, ब्रूनर. ठीक है. देन वी ऑल्सो रेड अबाउट टू अदर पैराडाइम्स, pragmatic and critical और feminist. ठीक है, जल्दी से बताओ कि what will be the ontology, epistemology in pragmatic. जल्दी से. रिलेशनल, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे हम ना तो रियलिज्म बोलेंगे ना ही रिलेटिविज्म बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नॉन सिंगुलर है. ठीक है, नॉन सिंगुलर इन नेचर. ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा है, एक है, दो है, हमें नहीं पता. ठीक है, वट एवर सूट्स द पर्सन, वट एवर एक्चुअली इज़ यूजफुल, हम प्रैग्मेटिज्म में वो यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई द एपिस्टेमियोलॉजी विल ऑल्सो बी रिलेशनल इन नेचर, एंड हेयर इन द एक्सियोलॉजी वुड बी वॉट? What will be the axiology in pragmatism? Value driven or value laden, क्योंकि the researcher is doing anything and everything which is useful, which is workable. That's why a lot of importance is given to values. Then the methodology will be mixed, कि quantitative भी use कर सकते हैं, qualitative भी use कर सकते हैं. नाउ इन क्रिटिकल रियलिज्म और इन क्रिटिकल और फेमिनिस्टिक पैराडाइम हम पुराने सोशल इशूज़, इकोनॉमिकल इशूज़ एक्सेट्रा को डील करते हैं. सो दी ओंटोलॉजी इज़ हिस्टोरिकल रियलिज्म. ठीक है, व्हाट विल बी द एपिस्टेमियोलॉजी? Transactional, very good Kritika. It will be transactional because it will be solely based upon the interaction between the interpreter or interpretee. ठीक है, at last when we talk about the social issues etc, तो the social norms or the cultural norms play very important role. And herein what kind of methodology are we going to use? Mixed. Very good everyone. I'm so glad it was a new topic and all of you have revised and all of you have understood. Very good. Most of you were answering all the questions, so it makes me very happy क्योंकि बहुत नया topic है and बहुत ही tricky topic है. तो very well done. ठीक है, from today onwards we are beginning with our research and statistics. ठीक है, so I am going to start with it. First of all, what do we understand by the term research? ठीक है, re and search, which means searching or evaluating something again and again. ठीक है, so there is a definition which is given by Kerlinger that we are going to see to understand research better. First of all, whenever we are conducting any scientific or empirical research, ठीक है, it is very important that we follow certain steps or procedure. ठीक है, it should be done in a controlled environment also, so that we can see and we can drive, we can actually come on a conclusion of cause and effect etc. We also create some hypothesis.
ठीक है. So herein whenever we are doing any kind of research, specifically empirical or scientific research, we follow certain steps, certain procedure. It is done generally in a controlled environment, ठीक है, in labs etc. And it is on the basis of, first of all we formulate some hypothesis and then we test those hypothesis. अब हमें ये जो भी चीज़ें, जो भी टर्म्स हमने डिस्कस किए, वी विल फोकस ऑन ईच वन ऑफ देम. ठीक है. तो रिसर्च इज इवेल्युएटिंग समथिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग अगेन एंड अगेन अंटिल वी हैव अ सॉलिड प्रूफ दैट दिस इज ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि द अटैचमेंट स्टाइल्स, ठीक है, दैट द पेरेंट अडॉप्ट हैव एन इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम, तो क्या मैं एक ही रिसर्च के बेसिस पे कह सकती हूँ कि हाँ यही होगा. हम रिव्यू करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ रिव्यू, right, of the existing literature which is there. That is why it is known as research, some looking for something again and again. ठीक है. एंड इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सम हाइपोथेसिस. हम पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि वी थिंक इट विल बी द रिजल्ट एंड देन वी टेस्ट दोज हाइपोथेसिस और दोज assumptions. ठीक है. Now there are various aims with which we conduct research. Sometimes it is to explore a new topic or formulate some new technology, giving some new insight, etc. Sometimes it is to just test the hypothesis or the assumption that the person is having. Sometimes it will be to describe a particular group. For example, if I wanted to see the what are the symptoms which are there in the people who have been infected with COVID, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा. हम समझा रहे हैं कि उनके अंदर क्या फीचर्स हैं. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस, ग्रुप्स एट्सेट्रा. एंड समटाइम्स जो रिसर्च है वो इसलिए भी की जा सकती है कि हमें कोई चीज़ डायग्नोस करनी है. कोई अगर बीमारी है, हमें ये देखना है कि उस चीज़ का प्रेवलेंस कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, व्हाट आर दी कोमॉर्बिडिटीज़, व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, क्या इटियोलॉजी है एट्सेट्रा. तो हम बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से रिसर्च करते हैं. कभी कभी बेसिक एक्सप्लोरेशन के लिए, कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, कभी जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए, कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एट्सेट्रा. ठीक है. क्लियर है टिल नाउ व्हाट इज़ द बेसिक प्रोपोनेंट ऑफ रिसर्च. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत हाईली रेपिटेटिव है, स्टेप्स आते हैं, सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है. तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन, रीड और अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली. The first thing, whenever you have to do any kind of research, the first thing that we do is to formulate the research problem. ठीक है. Now what is a research problem? It is an interrogative sentence or statement. For example, मेरा ये research problem है, why there is low retention rate in today's generation. ठीक है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से, एक गैप से, कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हमारा क्या इशू है जिसको हम केटर कर रहे हैं. क्लियर. आप सब ने कभी कोई रिसर्च या डिसर्टेशन की है? एनीबॉडी? अनुष्का ने की है. ओके. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्या एरिया है जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम. जनरली जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है या तो वो लोगों से रिलेटेड होती है, 4 P's हम बोलते हैं, पीपल, प्रॉब्लम. समटाइम्स इट कैन बी की फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम जैसे लो रिटेंशन रेट, इट इज़ अ प्रॉब्लम, हम उसको स्टडी कर रहे हैं. कभी कभी हम कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, मेंटल हेल्थ एक्ट आया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं. समटाइम्स वी स्टडी अ फिनोमिना ऑल टुगेदर. फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि जब अगर टीचर बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को शाबाशी देते हैं तो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं एट्सेट्रा, तो ऐसा क्यों होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we have to do any kind of research, we begin with a research problem. We formulate a research problem.
ठीक है. एंड देर आर 4 सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जनरली, जिनको हम 4 पीस बोलते हैं: पीपल, प्रॉब्लम, प्रोग्राम या फिनोमिना. ठीक है, ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज़ व्हाट. ठीक है. वंस यू हैव फॉर्मुलेटेड अ रिसर्च प्रॉब्लम, the next step that you will be doing is to study the existing literature which is available. ठीक है. तो समटाइम्स, कभी कभी हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स भी आइडेंटिफाई करते हैं इन दिस स्टेप. ठीक है. वंस वी फॉर्मुलेट आर रिसर्च प्रॉब्लम वी क्रिएट आर ऑब्जेक्टिव. ठीक है. रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी? हमेशा इंटेरोगेटिव होगी इन नेचर, बट ऑब्जेक्टिव विल ऑलवेज बी रिटन एज टू. For example, to assess the reason for low retention rate in students. Clear है? Then मैं क्या करूँगी? आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है रिटेंशन रेट पे, स्टूडेंट्स के अंदर कैसे रिटेंशन रेट बढ़ रहा है, इंडियन पॉपुलेशन में कितना रिटेंशन रेट है, ज़्यादा है, प्राइवेट में कैसा है, पब्लिक में, मतलब जो भी रेलेवेंट लिटरेचर, जो भी रेलेवेंट रिसर्चेस हुई हैं अब तक, मैं उन सबको रिव्यू करूँगी. क्लियर है? अब तक हमने क्या किया? फर्स्टली वी फॉर्मुलेटेड द रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव एंड रिव्यूड द लिटरेचर. ठीक है. नाउ अगर किसी ने यहाँ पे करा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, करा है एनीबॉडी? यस, नो. ठीक है. चार्वी हैज़ डन इट, अनुष्का हैज़ डन इट. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपन्स, जब आप रिव्यू करते हो, जैसे अगर मैं पुरानी रिसर्चेस देखूंगी तो मुझे एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मेरी स्टडी का क्या रिजल्ट आ सकता है. हो जाएगा. तो मैं एक हाइपोथेसिस या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या अजम्पशन बनाऊंगी कि फॉर एग्जांपल कि देयर विल बी क्या बोलते हैं कि मे बी अटेंडेंस इज़ वन रीज़न, मे बी मोबाइल फ़ोन इज़ वन रीज़न, सोशल मीडिया इज़ वन रीज़न, एट्सेट्रा. ठीक है. सो अब जो रिसर्च प्रॉब्लम थी वो क्या थी? वाइड थी. बट जब हम अब हाइपोथेसिस पे आ गए, हाइपोथेसिस इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. क्लियर है अब तक जो भी हमने बात की? फर्स्टली फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, writing the objectives on the basis of that, doing literature review, and at last developing the hypothesis. फिर हम हाइपोथेसिस जब डेवलप कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? अपना रिसर्च डिज़ाइन देखते हैं कि अब हमारी इस रिसर्च में हम क्वांटिटेटिव करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे, मिक्स्ड करेंगे, जो भी रिसर्च करेंगे. देन हम सैम्पल देखते हैं कौन सा सैम्पल हमारे लिए अप्रोप्रिएट है. जैसे अगर हमें देखना है लो रिटेंशन रेट इन टुडेज जनरेशन, तो हम मे बी जेनजी लेंगे, 18 to 24, यंग अडल्ट्स लेंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लेंगे, जो भी रेलेवेंट है हमारे लिए. डेटा कलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली एग्जीक्यूट डेटा एनालिसिस, hypothesis testing, and at last interpreting the results that we have gotten from the analysis, and at last writing the report. क्लियर है? जब भी हम रिसर्च करते हैं हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं. जिन्होंने रिसर्च की होगी मे बी दे विल बी एबल टू रिलेट मोर टू इट कि हाँ हमने ऐसे ऐसे किया था. क्लियर है? ओके अनुष्का, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस मैम. मैम, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, while the result मतलब they ask us to find support study. So what is the difference between support study and literature review? Like, देखो, बेसिकली जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होगे तो आपको बहुत सारी स्टडीज़ मिलेंगी जो आपकी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होंगी और कुछ स्टडी होंगी जो सिमिलर होंगी. बट वाई डू वी नीड टू इंक्लूड सम सपोर्ट स्टडी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके रिजल्ट को सॉलिडिफाई कर रहा है कि देखो मेरी रिसर्च में भी यही आया, दूसरी रिसर्च में भी यही आया. नाउ मूविंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? हम एक ही रिसर्च के बेसिस पे किसी भी चीज़ को सच नहीं बोल सकते. दैट इज़ वाई वी नीड सपोर्ट स्टडीज़, वी नीड एविडेंस स्टडीज़, सिमिलर स्टडीज़ जो पहले हुई हैं जिनके बेसिस पे हम बोल पाएँ कि हाँ देखो पहले भी ऐसा रिजल्ट आया था, ये स्टडी भी यही बोल रही है, इट मीन्स इट विल बी द ट्रूथ. मैम, तो फिर हम सपोर्ट स्टडी आफ्टर
हाइपोथेसिस ही निकाल स्टडी करते होंगे या फिर निकालते होंगे? देखो, इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस अनुष्का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे बहुत सारी स्टडीज़ मिल जाती हैं जो हमारे हाइपोथेसिस के सिमिलर होंगी, कुछ कुछ हमारे हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होंगी। ठीक है, नाउ आफ्टर वी हैव ऑब्टेन्ड द रिजल्ट्स, हम उन स्टडीज़ में से पिक कर लेते हैं कि ये स्टडी सपोर्टिंग स्टडी है या नहीं है। ठीक है, तो बार बार हम रिव्यू नहीं करने बैठते, हम एक ही बार में अच्छे से पूरा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, एंड एट लास्ट वहीं से अगर फिर भी कहीं कमी रह जाती है, देन वी लुक फॉर सपोर्ट स्टडीज। ओके मैम, गॉट। ठीक है, क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर विद द स्टेप्स? Ma'am, what do we do in seventh step? What do we do in seventh step? Seventh step is nothing but actually implementing the research. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये था कि लो रिटेंशन रेट का क्या है, तो मैं एक्चुअली जाके लोगों के में भी इंटरव्यू ले रही हूँ। ठीक है, या फिर अगर कुछ भी इंटरवेंशन देना हो तो मैं दे रही हूँ इंटरवेंशन एट्सेट्रा। यस डिम्पल? मैम, जैसे आपने जो एक एग्जाम्पल दिया था रिटेंशन वाला, तो वैसे एक एग्जाम्पल दे के आप 4-5 स्टेप्स में वो एग्जाम्पल डाल के बता सकते हो क्या? ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक एक स्टेप का बनाती हूँ, ठीक है, सो दैट यू हैव अ बेटर क्लैरिटी। सो माई रिसर्च प्रॉब्लम इज विल, ओके वेट, ठीक है, माई रिसर्च प्रॉब्लम इज कि वाई सम चिल्ड्रन हैव बेटर सेल्फ एस्टीम देन अदर्स। ठीक है, ये मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि भाई आई नीड टू वर्क ऑन दिस रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, देन व्हाट आई डिड वाज आई रिव्यूड द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, मैंने देखा कि सेल्फ एस्टीम पे कौन से वेरिएबल्स थे जो उसके अलाइन कर रहे थे एट्सेट्रा। ठीक है, तो व्हाट आई फाउंड वाज प्रीवियस स्टडीज़ में सेल्फ एस्टीम वाज हाईली कोरिलेटेड एंड हाईली स्टडीड विद अटैचमेंट स्टाइल्स। ठीक है, हाईली स्टडीड विद लोनलीनेस, हाईली स्टडीड विद परसीव्ड सोशल सपोर्ट दैट द पर्सन हैज़, हाईली स्टडीड विद XYZ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये मुझे कब पता चलेगा? रिव्यू करने के बाद। ठीक है, देन मैं क्या करूँगी, आई विल बी फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं कुछ वेरिएबल पिक कर लूँगी कि ओके दिस विल बी माई डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं ये सब वर्ड्स इसलिए पहले यूज़ नहीं करती क्योंकि अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी व्हाट इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, बट आई विल पिक, मे बी बेसिक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, मे बी पीपल विथ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल विल हैव बेटर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस हो गई। सेकेंड हाइपोथेसिस मैंने मान लिया कि जिनका नेग्लेक्टेड है उनकी लो सेल्फ एस्टीम होगी। अब तक क्लियर है हमने क्या किया? ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इन दिस फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टेप, मैं रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करूँगी। अब मेरे को पता है कि जो अटैचमेंट स्टाइल है उसका भी मेरे पास एक टूल है, सेल्फ एस्टीम है उसका भी मेरे पास एक टूल है, मतलब ये एक एग्जांपल है, और भी अलग अलग तरह की रिसर्च होती है। तो मतलब मैं अटैचमेंट स्टाइल को भी क्वांटिफाई कर सकती हूँ, सेल्फ एस्टीम को भी क्वांटिफाई कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अपना रिसर्च डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटेटिव बना लिया, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टडी इज़ इट? कोरिलेशनल। ठीक है, अब मैं इतना इलाबरेट नहीं करती क्योंकि अब हम ये सब एक एक वर्ड पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव, व्हाट इज़ कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव एक्सेट्रा। ठीक है, बट टिल नाउ हम क्या कर रहे हैं, बस कोरिलेशन देख रहे हैं कि इस अटैचमेंट स्टाइल के और सेल्फ एस्टीम में क्या रिलेशनशिप है, क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, देन मैं क्या करूँगी, अपना सैम्पल चूज़ करूँगी। ठीक है, अब हमें जो सैम्पल है वो भी बहुत अच्छे से और प्रिसाइसली चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 18 to 60 ले लूँ अपना डेटा, क्योंकि 18 साल के बच्चों की जनरेशन, 18 साल के बच्चों का एक्सपीरियंस, द वे दे हैव बीन ब्रॉट अप इज़ वेरी डिफरेंट देन अ 60-year-old। तो आई नीड टू टेक अ सैम्पल विच इज़
लाइक माइंडेड ना, तो मैं पहले तो अपनी पॉपुलेशन डिसाइड करूँगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ यंग अडल्ट्स पे, ठीक है। अब एवरी यंग अडल्ट, ठीक है, विच मीन्स 18 to 24 ईयर्स वाले बच्चे, कोई भी मेरा सैम्पल हो सकता है। तो मैं उस पॉपुलेशन में से छोटा सा चंक उठाऊंगी, मे बी 50, 60, 100 पीपल, एंड मैं उनका डेटा कलेक्ट करूँगी। क्लियर कि क्या किया है हमने, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट इज़ सैम्पल डिज़ाइन, बेसिक आइडिया क्लियर है डिम्पल। अभी ना बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जैसे हाइपोथेसिस, कोरिलेशन एक्सेट्रा, जो अभी तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो वंस वी मूव थ्रू द होल प्रोसेस हम दोबारा इस टेबल पे आएंगे, बट अभी के लिए आपको बस एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी इंडल्ज इनटू, ठीक है। क्लियर, आर वी गुड टू गो? ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ वेरिएबल। हमने सबसे पहले क्या बात की थी, रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, रिव्यू करेंगे, एंड रिव्यू से हमें अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में पता चलेगा। नाउ वेरिएबल, समथिंग विच वेरीज, समथिंग विच इज डायनेमिक, समथिंग विच कैन चेंज, ठीक है। अब हम अगर साइकोलॉजी जैसा कोई कॉन्स्ट्रक्ट पढ़ रहे हैं, अब कुछ कुछ वेरिएबल होंगे जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइटी है, उसके जो भी सिम्टम्स है टैंजिबल है, हम देख पाएंगे, बट बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो इंटरनल होती हैं या हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। तो इन सच disciplines it is very crucial to choose good variables, to choose variables which are very well defined, ठीक है। तो it is very important to define the variable in any kind of study, ठीक है। सो बाय द वर्ड ऑफ इट हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल्स इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड विच इज़ डायनामिक इन नेचर, एंड हम क्या करते हैं अपनी स्टडी में, वी वांट टू मेजर दीज चेंजेस, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अगर अटैचमेंट स्टाइल है तरह का, तो हमारे सेल्फ एस्टीम में क्या चेंज आ रहा है, क्या वो ज़्यादा हो रही है, क्या वो कम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो there are multiple types of variable which are there that we need to understand। तो हम टिपिकली 3 मेजर वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऐड अनदर स्लाइड, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable is generally the variable which can be manipulated, measured or selected, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि my research problem is the impact of attachment style on self esteem, now you tell me what is the independent variable here? Attachment style. Attachment style. So herein the independent variable will have an effect on our dependent variable, clear? And there are 2 types of independent variable loosely, ठीक है, type E and type S, ठीक है। Type E are those independent variable which can be manipulated. For example, if I want to see the effect of light on retention, तो मैं लाइट को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मैं कंडीशन बना सकती हूँ कि एक जगह डिम लाइट है, एक जगह मतलब एकदम अंधेरा है, एक जगह ब्राइट लाइट है, एक्सेट्रा, हो सकता है ऐसा। सो हेयर इन लाइट इज व्हाट, अ टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वेयर एज कुछ वेरिएबल होते हैं जिनको हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जेंडर, ठीक है। जैसे अगर मुझे ये देखना है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन सेल्फ एस्टीम, तो क्या मैं किसी का जेंडर मैनिपुलेट कर सकती हूँ कि अच्छा आपका आपसे फीमेल है, मेल है? नहीं हो सकता ऐसा। तो दोज काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर सिलेक्ट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
क्लियर है अब तक? ठीक है, सो मैम यस। मैम ये जो टाइप ई और टाइप एस है इनका कुछ फुल फॉर्म है या ये टाइप ई और टाइप एस ही हम कहलाते हैं? टाइप ई एंड टाइप एस ही बोलते हैं, कुछ फुल फॉर्म नहीं है। बस टाइप एस इज सेलेक्टेड, ई इज मैनिपुलेटेड और समथिंग विच इज मेजर्ड। ठीक है, सो व्हाट वी हैव लर्नड, independent variable is the variable which can be manipulated, measured or selected. It has an impact on our dependent variable. It will be the stimulus variable, मतलब हम इस वेरिएबल से चेंज ला सकते हैं। ठीक है, चेंज कैन बी ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जेंडर में सिर्फ फीमेल लेना है या मेल लेना है तो दिस इज अ स्टिमुलस वेरिएबल। हमें पता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टिमुलस कैसे हुआ, एनीबॉडी? Stimulus is something that is present in the environment to which we react and we give a response. So, stimulus, we can identify stimulus as an independent variable by defining it as something that is changing in the environment or that is वेरी something we गुड, are observing. वेरी गुड चार्वी, वेरी गुड। ठीक है, सो बिकॉज इट इज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स, हैव एन इफेक्ट, that is why it is a kind of stimulus variable. And we have also studied about what is type E, what is type S. Now very important, most of the time हम ये देखते हैं कि जो हमारा कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट वुड ईदर बी नॉमिनल और कैटेगोरिकल। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया कि फॉर द नेम सेक ओनली। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, व्हाट डू वी से, नेग्लेक्ट अटैचमेंट स्टाइल एट्सेट्रा। ठीक है, हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स नहीं लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इज जिनको हम डिस्क्रीट में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो 1.2 1.3 एट्सेट्रा में अवेलेबल होंगे, ये कौन से वेरिएबल्स होंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन कॉन्टीन्यूटी। सो जनरली इट वुड ईदर बी कैटेगोरिकल, जैसे जेंडर है, वी कैन कैटेगराइज इट इनटू मे बी मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, independent variable is generally categorical in nature or nominal in nature. Categorical is it can be categorized into multiple levels, or nominal is it is just for namesake. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देख रहे हैं हम किसी का, तो इट इज़ अ नॉमिनल। हम सोशो इकोनॉमिक को नंबर में या वन इसमें मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? आर वी गुड टू गो? यस चार्वी। मैम, हमने अभी बोला कि हमारा जो आईवी होगा वो सिर्फ नॉमिनल और ऑर्डिनल ही होगा। तो नॉमिनल ये सिर्फ और साइकोल कैटेगोरिकल, नॉट ऑर्डिनल। कैटेगरी, सॉरी मैम। तो मैम ये सिर्फ साइकोलॉजी तक ही है ना, क्योंकि आउट ऑफ साइकोलॉजी ये हमारा आईवी बाकी सारी उसमें भी जा सकता है ना शायद? ऐसा नहीं होता। देखो, जब भी हम वेरिएबल पढ़ते हैं या हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एरर एक्सेट्रा पढ़ते हैं, वो सेम रहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा कि हमारे में हम कैटेगोरिकल या नॉमिनल ही लेते हैं, उनमें तो हम कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लाइट है, लाइट की ब्राइटनेस का हमें इफेक्ट देखना है ऑन मे बी, फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, अब साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। अब जो इफेक्ट ऑफ सनलाइट है, मुझे उसे कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि अगर मे बी 3 आवर की सनलाइट मिल रही है, 6 आवर की सनलाइट मिल रही है, 9 आवर की सनलाइट मिल रही है एट्सेट्रा। ठीक है, तो ज़्यादातर या तो हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि एक ट्रीटमेंट ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है एट्सेट्रा, ऐसे करते हैं। तो वो हर डिसिप्लिन में ऐसा ही रहता है, किसी में चेंज नहीं होगा कि साइकोलॉजी में ऐसा है, दूसरे में ऐसा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? आर वी गुड टू गो? ठीक है,
सो नाउ मूविंग अहेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ जनरली जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इट इज़ जनरली दी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इसके बारे में ही हम प्रिडिक्शन बनाते हैं कि हाउ सेल्फ एस्टीम इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस और दैट. ठीक है, इट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड. इट इज़ जनरली मेजर्ड इन कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स. ठीक है, इट विल गेट अफेक्टेड बाय आईवी एंड इट विल बी रिस्पॉन्स और बिहेवियरल वेरिएबल. ठीक है, बिकॉज हेयर इन जो स्टिमुलस है, इट इज इम्पैक्टिंग द रिस्पॉन्स. सो आर डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिस्पॉन्स वेरिएबल और द बिहेवियरल वेरिएबल और आउटकम बेस्ड वेरिएबल. क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IV and DV? Independent variable, dependent variable. Independent variable is something which is going to impact the DV. It is the stimulus variable, and there are two types generally that we study, type E and type S. Type E is something, the independent variables that we can manipulate, and type S are those variables that we can just select. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ई में हमने लाइट के बारे में पढ़ा. ठीक है, सनलाइट एट्सेट्रा. ठीक है, सिलेक्टेड में जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है किसी इंसान का या जेंडर है एट्सेट्रा, तो वो कैसे होते हैं, टाइप एस वेरिएबल्स. ठीक है, क्लियर है? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनीवेयर टिल नाउ प्लीज लेट मी नो. यस मानवी. Actually, I'm not able to understand continuous and nominal terms. ठीक है, देखो, whenever we use the term nominal, always remember it is the variable which is just for namesake. For example, if I say low socio-economic status. ठीक है, अब क्या मैं किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस 1 2 3 4 5 में मेजर कर सकती हूँ? ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है. ठीक है, कि अगर मुझे ये देखने कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों का वेलबींग कैसा होता है, तो द वेरिएबल दैट आई हैव चोजन इट इज़ जस्ट फॉर नेम सेक. ठीक है, कि मैंने एक कैटेगरी बना दी है हाइपोथेटिकली कि मे बी जिनकी अर्निंग 1000 से कम है वो लोग लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आते हैं. बट मैं इनको मेजर नहीं कर सकती कि 1 लो 1 2 3 4 नहीं हो सकता ऐसा. ठीक है, वेयर एज व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स, continuous variables are those which are first of all measurable. ठीक है, एंड हम उनको क्वांटिफाई इजीली कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलबींग देख रही हूँ किसी की, ठीक है, तो मैं अगर जो भी वेलबींग का स्केल यूज़ कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो आई विल बी एबल टू सी कि अच्छा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के मैंने लोग ले लिया. लेट मी ऐड अनदर स्लाइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 60 people from low socio-economic background and I am seeing its effect on their well-being. ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी वेलबींग का स्केल ले रही हूँ, तो मैं उसको नंबर में देख पाऊँगी कि मे बी इस स्केल पे मे बी 0 to 90 की वैल्यू है. ठीक है, द हायर द स्कोर द हायर द वेलबींग. ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा रियल में ठीक है नहीं है. सो मैं इसको कोरिलेट कर पाऊंगी. आई विल बी एबल टू सी द ट्रेंड कि जो ज़्यादातर लोग हैं 60 में से, क्या उनकी वेलबींग कम है इससे या ज़्यादा है इससे. तो बस तुम नॉमिनल को ये समझ लो कि नेम सेक का वेरिएबल है जिसको हम 1 2 3 4 में मेजर नहीं कर पाएंगे. वेर एज कॉन्टीन्यूस आर दोज वेरिएबल जो हम नंबर में, पॉइंट्स में, डेसिमल एट्सेट्रा में मेजर कर सकते हैं. क्लियर है? इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनीवेयर प्लीज लेट मी नो. Am I audible? Yes, no. I mean, like if I say कि like stress एक category है, high stress, low stress, moderate stress, वो हो गया nominal हो गया, namesake हो गया. Because we can't quantify कि वो कितना level है, क्या numbers नहीं दे सकते उसको. हाँ, मतलब वहाँ पे हम सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं उनको, हम वहाँ पे नंबर नहीं देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड करती हूँ स्लाइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये देख रही हूँ कि द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन
on the social support of the individual and maybe loneliness experienced by the individual. रुको इसको opposite करते हैं. Let me erase it. ठीक है. For example, I want to see the effect of social support on internet addiction. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं 2 मे बी ग्रुप में या 3 ग्रुप में डिवाइड कर लूँगी कि अच्छा जिनका लो सोशल सपोर्ट है उनका इंटरनेट एडिक्शन कैसा है, जिनका मॉडरेट है उनका इंटरनेट एडिक्शन कैसा है, या जिनका हाई सोशल सपोर्ट है उनके इंटरनेट एडिक्शन कैसा है. ठीक है. तो यहाँ पे जो इंटरनेट एडिक्शन है उसका मैं एक पर्टिकुलर स्केल यूज़ कर रही हूँ. अगर वो स्केल 0 से 30 के बीच में लाई करते हैं तो देयर कैन बी infinite observation 1 2 3 4 5 6 1.1 1.2 etc which can lie between this range. इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं और इसको कैटेगोरिकल बोल रहे हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. अभी भी अगर किसी को कहीं डाउट है प्लीज़ लेट मी नो. हम रिसर्च कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए नया होगा इसीलिए हम टेकिंग इट अ लिटिल स्लो. इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर प्लीज़ लेट मी नो, देन आई विल मूव टू द एक्सट्रेनियस वेरिएबल. मैम जैसे अभी मानवी ने ये स्ट्रेस का एग्जांपल लिया, तो अगर हम लोग स्ट्रेस को भी किसी स्केल के थ्रू मतलब उसका स्कोर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैम उसमें भी क्या कहते हैं, स्ट्रेस के भी तो लाइक डेसिमल्स में नंबर आ सकते हैं ना, लेकिन ओके ओके लेट मी रिजॉल्व दिस क्वेरी ऑल्सो. अच्छा क्वेश्चन है चारवी, बहुत ज़्यादा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इन इंटरनेट एडिक्शन, तो आप ये बोल रहे हो कि स्ट्रेस का भी तो स्केल होता है ना, यही कह रहे हो ना आप? हाँ मैम. है ना. बट एक बात बताओ, अगर आपको ये देखना है कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या है इंटरनेट एडिक्शन पे, तो हम अगर जनरली हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं कि द हायर द स्ट्रेस द मोर द इंटरनेट एडिक्शन, या फिर द लोअर द स्ट्रेस द मे बी द लीस्ट द लोअर इज द इंटरनेट एडिक्शन एक्सेट्रा. तो हम पहले ही अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैटेगराइज कर रहे हैं कि लो स्ट्रेस वाले लोगों का हम हमेशा जनरली जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें कट ऑफ पॉइंट बनाते हैं. ठीक है. इट डज नॉट मीन कि मैं इसमें नंबर में मेजर नहीं कर सकती. व्हेन आई मीन कैटेगरी, आई डोंट मीन कि ये नंबर के बेसिस पे कैटेगरी नहीं बन सकती. हम नंबर के बेसिस पे ही तो डिफाइन करते हैं कि मे बी जिनका 30 से ज़्यादा स्कोर है उनका हाई स्ट्रेस है, या 30 से कम है लो है, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या व्हाट्सोएवर. तो नंबर में ये भी मेजर हो सकता है, बट लेटर ऑन वी ट्राई टू कैटेगराइज इट इनटू वेरियस लेवल्स इन द इवेंचुअली. तो दोनों नंबर में तो हो सकते हैं. ठीक है. जैसे अगर तुम SPSS में डालते हो तो तुम SPSS में स्ट्रेस की वैल्यू, जितना भी स्ट्रेस के क्वेश्चनर पे मे बी स्कोर आया और इंटरनेट एडिक्शन के क्वेश्चनर पे जितना भी स्कोर आया, तुम वो दोनों डालते हो और तुम उन दोनों का मे बी पियर्सन कोरिलेशन निकाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल. तो दोनों नंबर में हो सकते हैं. आई डोंट मीन कि नंबर में मेजर नहीं कर पाएंगे. आई जस्ट मीन हम जनरली कैटेगरी बना देते हैं या उसको एज अ नॉमिनल वेरिएबल चूज करते हैं. बट इट डज नॉट मीन कि वो नंबर में हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते या वो मेजर ही नहीं हो सकता एक्सेट्रा. अब बेटर है, अब क्लियर है. अभी भी अगर किसी को कहीं क्वेरी है तो बताओ. क्लियर एवरीवन? अगर अभी भी डाउट है आई वुड बी मोर देन विलिंग टू एक्सप्लेन अगेन, बट प्लीज अभी क्लियर कर लो. हाँ जी मानवी. मैम जस्ट मैं लाइक अपने क्लैरिटी के लिए चीज पूछ रही हूँ. सपोज हम इफ वी टेक दिस एग्जांपल ओनली, तो जब हम स्ट्रेस का ऐसे कैटेगरीज बना लिए लाइक असेसमेंट में होता है, तो वो जो हम हाई मॉडरेट वगैरह इंटरप्रिटेशन डालते हैं वो नॉमिनल हो गया. बट द स्कोर भी कम अक्रॉस कि क्या स्कोर है वो कॉन्टिन्यूस हो गया वेरिएबल. हाँ बट लूजली भी से. हाँ करेक्ट. हम इवेंचुअली स्कोर के बेसिस पे ही तो हम कैटेगरी बना रहे हैं ना. ये समझ में आया कि जब भी आप कोई स्केल का इंटरप्रिटेशन करते हो पहले एक स्कोर निकलता है, उस स्कोर को ही तो कैटेगराइज करते हो कि इतने से इतने का स्कोर है तो ये है कैटेगरी एक्सेट्रा. ठीक है. तो अब मैं ये नहीं बोल सकती कि स्ट्रेस का 1 स्कोर आया तो इंटरनेट एडिक्शन का 10 आएगा.
मैं ये बोलूँगी कम स्ट्रेस है तो इंटरनेट एडिक्शन ज़्यादा होगा। इवेंचुअली हम एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं और उसके बेसिस पे ही हम इफेक्ट देखते हैं ऑन आर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू सी दैट वेज। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, मूविंग अहेड। नाउ द थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ वेरिएबल इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नाउ इफ आई आस्क यू, अगर मैं ये देख रही हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ अटैचमेंट स्टाइल ऑन सेल्फ एस्टीम, क्या सिर्फ अटैचमेंट स्टाइल ही ऐसा है जो डीवी पे इफेक्ट कर सकता है, हमारे सेल्फ एस्टीम पे इफेक्ट कर सकता है? और भी हो सकते हैं वेरिएबल, मे बी लोनलीनेस, मे बी क्या बोलते हैं कि उनके अंदर कितनी कॉम्पिटेंस है, मे बी वो कितने इंटेलिजेंट हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, एक्सेट्रा। सो देर आर अ लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स ऑल्सो विच आर देयर, ठीक है, विच हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, that is why it is known as extraneous variable. Any other variable than the selected independent and dependent variable are going to be our extraneous variable. Clear? क्या होते हैं extraneous variables? ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कंट्रोल दोज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इम्पैक्ट कर सकता है सेल्फ एस्टीम को, तो मैं क्या करूँगी, मे बी सारे लोग जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं उन्हीं को लूँगी अपनी स्टडी में। हम ट्राई करते हैं कंट्रोल करने का, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि हम इसका इम्पैक्ट इस पर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन बी कंफाउंडिंग और इंटरवीनिंग इन नेचर। लेट्स सी व्हाट आर दीज टर्म्स। ठीक है, दो टर्म है, एक तो है इंटरवीनिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल, एंड सेकंड है कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल, इफ आई से कि इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन स्लीपलेसनेस, ठीक है, मेरे को ये देखना है, तो व्हाट विल बी माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? Caffeine. कैफीन। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द स्लीपलेसनेस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरवीनिंग extraneous variable, they try to mediate the process. For example, caffeine is increasing the alertness of the individual, which is later on keeping them awake. So herein alertness is helping us in understanding the result, understanding the, तो कभी कभी क्या होता है जब हम सपोर्टिंग स्टडीज़ ढूंढते हैं तो हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इंटरवीनिंग वेरिएबल जनरली मीडिएट्स द रिजल्ट एंड दे हेल्प अस इन एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो, कि अच्छा कैफीन का इम्पैक्ट स्लीपलेसनेस पे ये था कि पहले अलर्टनेस बढ़ी जिसकी वजह से स्लीपलेसनेस हो गई इंडिविजुअल को। क्लियर? बट इसकी वजह से क्या हमारे रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है? एवरीवन? No, मैम वो रिजल्ट को सपोर्ट कर रहा है। वेरी गुड चारवी। ठीक है, And proportional in nature. वेरी गुड। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में मदद कर रहा है, इट इज सपोर्टिंग दी स्टडी। ठीक है, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या करेगा? इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रिजल्ट। ठीक है, ये क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा रिजल्ट को। ठीक है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रिजल्ट। लेट्स सी हाउ। Confounding variable. For example, I want to see effect of a medicine
ऑन स्लीप। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंडिविजुअल को मेलेटोनिन दिया, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू सी हाउ इट इम्पैक्ट्स देयर स्लीप। अब अगर वो इंडिविजुअल बीच में कॉफ़ी पी ले, ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, विल इट चेंज द रिजल्ट जो भी मैं लेके आना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट हैम्पर हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, मे बी एक्चुअली में क्या हो रहा था कि मेलेटोनिन की वजह से स्लीप इम्प्रूव हो रही थी, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रेनियस वेरिएबल विच वॉज कैफीन, क्या हुआ, हमने मेलेटोनिन लिया एंड कैफीन की वजह से हमारी स्लीप डिप्राइव हो गए हम, रैदर देन गेटिंग स्लीप। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैफीन की वजह से हमारी जो हमारी जो स्टडी का रिजल्ट था वो ख़राब हो गया, इट गॉट इम्पैक्टेड। ऐसे ही बहुत सारे हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं जो कंफाउंड करने की एबिलिटी रखते हैं हमारी स्टडी। क्लियर है व्हाट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड व्हाट इज कंफाउंडिंग वेरिएबल? यस कृतिका। मैम, ये जो इंटरवीनिंग है, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल के मतलब टाइप्स हैं या अलग से हैं? टाइप्स हैं बच्चे, ओके ओके। ठीक है, बेसिकली ये है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनका दो नेचर हो सकते हैं, या तो वो इंटरवीनिंग होंगे नेचर में या फिर वो कंफाउंडिंग होंगे। इंटरवीनिंग क्या होंगे, हमारे रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे, और कंफाउंडिंग क्या होंगे, हमारा रिजल्ट ख़राब कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनीवेयर प्लीज़ लेट मी नो, देन वी विल टेक आवर 10 minute ब्रेक एंड मूव फर्दर इन द क्लास। मैम, ये कंफाउंडिंग के नीचे जो ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये एक्सपोजर और आउटकम का क्या मतलब है? एक्सपोजर मतलब मेलेटोनिन है फॉर एग्जांपल, एंड आउटकम क्या हो गया, स्लीपलेसनेस। अब एक्चुअल में क्या हुआ, जो कैफीन है, मेलेटोनिन इज नॉट कॉजिंग स्लीपलेसनेस, बट बिकॉज ऑफ दिस कैफीन हमें ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा मतलब कि मेलेटोनिन हैज़ कॉज्ड स्लीपलेसनेस, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल कॉज। ठीक है, कंफाउंडर वेरिएबल इज द वेरिएबल विच हैज़ लेड टू कॉजिंग दिस पर्टिकुलर आउटकम। इसलिए ये एक्सपोजर और आउटकम, एक्सपोजर को तुम बस ये मान लो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यस मानवी। Ma'am, can you please explain intervening variable again? ठीक है, देखो, जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है वो हमेशा हमारी स्टडी को मीडिएट करता है या उसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलती हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ परसीव्ड सोशल सपोर्ट ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है, तो अगर मैंने ये बोला कि परसीव्ड सोशल सपोर्ट ज़्यादा था तो सेल्फ एस्टीम भी ज़्यादा थी। नाउ व्हाट हैपेंड, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी इंटरवीनिंग वेरिएबल है, इट माइट बी इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है, या फिर इंक्रीज्ड वेट, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम थोड़ा ओवरलैपिंग है, मे बी यू कैन से दैट इंक्रीज्ड प्रेजेस। ठीक है, अगर उनका सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था तो उनको हमेशा प्रेजेस मिली अपनी फैमिली से, जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हेयर इन जो प्रेज है वो हमारे रिजल्ट को एक्सप्लेन की, हमारे परसीव सोशल सपोर्ट ने सेल्फ एस्टीम को कैसे इम्पैक्ट किया उसको एक्सप्लेन करने में मदद कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरवीनिंग वेरिएबल। इट विल हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द आउटकम and it mediates the result between our IV and DV. Clear है सबको? If you have Yes, any ma'am. doubts anywhere, please let me know. Okay everyone, so we'll take our 10-minute break and then we'll continue with the next topics.